अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर एक ड्रग है वो बॉडी में एंटर हो जाए और टारगेट आर्गन तक पहुंचे तो वो अपना इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस करता है या एक्शन किस तरह करता है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, और ये हमारे साथ फार्माकोडायनामिक पैरामीटर है और इसको हम डिफाइन करते हैं द मीन्स और द वेज बाय विच अ ड्रग brings about their pharmacological effect is known as mechanism of drug action। ठीक है, अब अगर ड्रग है वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है, तो वो two types of effects produce करता है। ठीक है, they either activate the physiological processes and such drugs are called as stimulants, they either inhibit the physiological processes and such drugs are called as depressants। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो the drug acts either by the physical mechanisms, chemical mechanisms, physiochemical mechanisms, replacement, and the pharmacological mechanisms which are important. And pharmacological mechanism, the drug produces the target-mediated action by interacting with the enzymes, ion channels, carrier proteins, or the receptor-mediated mechanisms। ठीक है, अब हम आ जाते हैं about the physical mechanism। In physical mechanisms, the drug act by the virtue of its physical properties, and it takes place outside the cell, and they involve the osmosis, absorption take place at the surface or at the interface, ठीक है, and the formation of the surface coating। ऑस्मोसिस में हमारे साथ ऑस्मोटिक डाययूरेटिक आ जाते हैं। एग्जांपल इंक्लूड द मानिटोल, जिसको हम वेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर में भी देते हैं या ग्लूकोमा में भी यूज़ होता है मानिटोल। ठीक है, ये क्या करता है हमारे साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा करता है बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, और हमारे साथ जो फ्लूइड है हमारे साथ सेल से प्लाज्मा में आ जाता है और उसकी डाययूरेसिस होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेटेड चारकोल आ जाता है जो कि हम देते हैं पॉइजनिंग में। ठीक है, एंड दे इंटरैक्ट विद द पॉइजन एंड न्यूट्रलाइज इट इन द स्टमक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अबाउट द केमिकल mechanism। In chemical mechanisms, the drug act by the virtue of its chemical reactions. The example include the antacids and chelating agents. An antacid, the drug, the acid is neutralized by neutralizing reactions। ठीक है, insulating agents, the example include despaxamine and protamine sulfate। Despaxamine is used in iron toxicity or iron overload, and the protamine sulfate it is a chelating agent for the warfarin toxicity। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ आ जाते हैं physiochemical mechanisms are the combined mechanisms in which the drug act by both the physical and the chemical means, like aluminum hydroxide, which is an antacid, and it form the surface coating, which is a physical property, and it also neutralize the stomach acid, which is a chemical property। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, जो अल्सरेटेड एरिया होता है वो उसको कोट करता है। इसी तरह हमारे साथ जो स्टमक एसिड है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द रिप्लेसमेंट इन द बॉडी। So the certain endogenous compounds like neurotransmitter hormones, they are produced normally, but in certain pathological condition we give it exogenously। like अगर हम आ जाते हैं थायरॉक्सिन हाइपोथायराइडिज्म में, हम अगर एक पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म और थायरॉक्सिन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस ना हो तो वो हम उसको एक्सोजेनसली दे दें। इसी तरह अगर टाइप 1 डायबिटीज है एक पेशेंट, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो हम उसको इंसुलिन बाहर से देंगे। इसी तरह अगर पेशेंट को मिनरल या विटामिन डिफिशिएंसी है तो वो भी हम देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी हम डायरिया में करते हैं अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अबाउट द फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स which is an important type of the drug mechanisms, and it involves the specific and target mediated action of the drugs in which the drug interact with the target molecules and produces actions, and it involves the drug acting on the enzyme, drug acting on certain ion channels, and drug acting on carrier proteins, and drugs acting to the receptor molecule। इसमें हम आ जाते हैं अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन द एंजाइम। तो ड्रग जो है ना हमारे साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है उस एंजाइम को। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है कैटालाइज्ड बाय दैट एंजाइम इट इज़ इनहिबिटेड। लाइक हम अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स की, जिसमें से स्टेटिन्स ड्रग आ जाते हैं, लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एचएमजी को रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उसको इनहिबिट करते हैं, तो हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होती। इसी तरह जो पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग है लाइक न्यूस्टिग्मीन है, तो
ये क्या करता है, एन एसिटाइल कोलिन स्टरेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होती और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एसिटाइलोप्यूरेनॉल है जो कि गाउट में यूज़ होता है, ये सेंटीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल दे आर इनहिबिट द एस एंजाइम, ठीक है। इसी तरह हम आ जाते हैं अबाउट द ड्रग एक्टिंग ऑन द आयन चैनल। इसमें ये होता है कि ड्रग जो है ना हमारे साथ आयन चैनल्स के साथ कंबाइन होता है और उसको ब्लॉक कर देता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स व्हिच ब्लॉक द सोडियम चैनल। इसी तरह हमारे साथ जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं लाइक डाइहाइड्रोपाइरिडीन है, निपिडिपिन है, नेस्लोडिपिन है, ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। और ये हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। इसी तरह ड्रग एक्टिंग ऑन द कैरियर प्रोटीन्स, तो इसमें होता है कि ड्रग जो है ना हमारे साथ कुछ कैरियर प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, उसको इनहिबिट करता है। लाइक हम जो PPIs देते हैं, प्रोटॉन पम्प्स इनहिबिटर इंक्लूड द ओमेपाजोल, एस ओमेपाजोल, दे इनहिबिट द हाइड्रोजन आयन आयरन कैरियर, और ये हमारे साथ जो प्रोटॉन्स है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह डिजॉक्सिन है जो कि हम हार्ट फेलोर में देते हैं, ये दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ठीक है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं अबाउट द ड्रग्स दैट एक्टिंग टू द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जो है ना, दीज आर द the receptors are protein in nature and they are present within the cell membrane, inside the cell. And with the receptor, the drugs are the endogenous compound bind and they brings the action. ठीक है। तो receptors जो है ना, they are highly specific in their action, means each receptor bind with a specific endogenous compound are the receptor। जब एक ड्रग जो है ना वो receptor के साथ bind करता है, ठीक है, तो receptor को एक्टिवेट करता है और वो हमारे साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है थ्रू वेरियस इफेक्टर मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसमें से फिर हमारे साथ ड्रग एक्टिंग टू रिसेप्टर्स, इसमें से डिपेंड आ जाते हैं हमारे साथ आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स भी, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स भी और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स भी है। तो सबसे पहले हमारे साथ हम आ जाते हैं अबाउट आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स। इसको हम लिगैंड गेटेड चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड सच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द आयन चैनल्स। अगर हम एग्जांपल ले लें निकोटीन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, तो ये जो है ना हमारे साथ क्या है, पेंटामेरिक रिसेप्टर है, ठीक है। इसके 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा, 1 गामा। जब एसिटाइल कोलिन आता है तो वो अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो चैनल होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और ये ओपन होता है, हमारे साथ सोडियम अंदर आता है, तो ये क्या करता है, डिपोलराइजेशन करता है और हमारे साथ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन करता है। इसी तरह अगर हम गाबा रिसेप्टर की बात करें तो तो जो ड्रग्स आते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह या बार्बिटूरेट्स, तो वो क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और जब एक्टिवेट होते हैं तो क्लोराइड आयन जो है ना अंदर आते हैं, तो हमारे साथ सेल हाइपर पोलराइज होता है। तो ये हमारे साथ क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अबाउट द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। सच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म आर द एंड द nucleus and the lipid soluble and non-polar drugs, they crosses the cell membrane, enters into the cytoplasm and combine with the receptors, they form the drug receptor complex, which then acts on certain specific genes and activate them and produces the proteins, ठीक है। The examples include the thyroid hormones that utilizes the nuclear cytoplasmic receptors, steroid hormones and sex hormones। अब हम आ जाते हैं the drugs uh, that work to the enzyme link receptors, ठीक है। तो such receptors are present within the cell membrane, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और इसका हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी होता है। जब एक और एंजाइम लिंक रिसेप्टर के एग्जांपल में हमारे साथ इंसुलिन रिसेप्टर्स आ जाते हैं, दैट वर्क टू एंड द इंसुलिन रिसेप्टर्स हैव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। जब इंसुलिन आता है तो अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और हमारे साथ रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है जो इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, एट वर्क एज अ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। तो इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर। और इंसुलिन रिसेप्टर के हमारे साथ 2 यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट है। अल्फा सब यूनिट जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर और बीटा सब यूनिट जो है ना दे आर प्रेजेंट इंट्रासेलुलरली। आखिर में अब हमारे साथ आ जाते हैं द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स, दे आल्सो नोन एज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। इस जी प्रोटीन रिसेप्टर कपल रिसेप्टर के हमारे साथ 3 पोर्शंस होते हैं, कि इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, एक इसका हमारे साथ ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट होता है, तीसरा इसका इंट्रासेलुलर पार्ट होता है, विच इज कपल विद द जी
protein, and they passes through the membrane 7 times. That is why it is also called as the 7-pass receptors. And the intracellular portion which is coupled to a G protein, and the G protein is composed of alpha subunit, beta subunit, and the gamma subunit. And the G protein is present in two states. One is the inactive state, and the second one is the active state. तो हमारे साथ जो G protein है in inactive state, it is coupled with the GDP molecule. But when a drug come, the ligand molecule bind with the extracellular domain, activate the receptor, then the G protein replaces the GDP molecule with the GTP molecule, and the gamma and beta subunit are released, and the alpha subunit of G protein, it is coupled with the GTP molecule. Then alpha GTP acts to various effector mechanism, like it may act to the second messenger system, which includes cyclic MP, cyclic GMP, and inositol triphosphate, and also the diacylglycerol, and it may also act to certain ion channels directly and brings the फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। तो हमारे साथ जो जी प्रोटीन है, अगर ये इनएक्टिव स्टेट में हो तो इट इज़ कपल्ड विद द जीडीपी, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है, एक ड्रग आके बाइंड करता है, तो जीडीपी जो है ना, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द जीटीपी मॉलिक्यूल, और ये जीटीपी मॉलिक्यूल जो है ना, अल्फा जीटीपी, ये हमारे साथ वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अगर ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो इट काज़ ए कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू साइक्लिक एमपी, और इसी तरह हमारे साथ सेल में साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ अगर ये फॉस्फोलिपिड सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तो इट काज़ ए कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन एंड टू द डाइसल्ग्लिसरॉल एंड द इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमारे साथ जो जी प्रोटीन है, इट एक्ट टू द सेकंड मैसेंजर सिस्टम, इट में एक्ट डायरेक्टली ऑन द आयन चैनल्स। ठीक है, और जो जी प्रोटीन है, दे में बी जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी एंड जी क्यू। जी स्टिमुलेटरी एंड जी इनहिबिटरी बोथ एक्ट to the cyclic AMP enzymes, and they causes the increased concentration of the cyclic AMP. But the G-stimulatory protein include all the beta receptors. G inhibitory include the alpha 2 and the muscarinic 2 receptors, M2 receptors, which are found in the heart. Okay? And the GQ protein, they act to the phospholipid C system, which cause increased concentration of inositol triphosphate and diacylglycerol inside the cell, and they cause influx of calcium ion, and cause depolarization. It may activate various phosphokinases enzyme, and they include the M1 receptors, which is found in the glands of the stomach, M3 receptors, which are found in all other glands, and also in the smooth muscle, and alpha 1, which is found in the smooth muscles.